जी उनसे संवाद कर उनसे बातचीत करेंगे। नरसिंह भाई नमस्ते। नमस्कार सर। तो वडनगर में क्या रहो छो नरसिंह भाई? साहब गोचीओड़। તમારો અવાજ નહીં આવ્યો સાહેબ ગાચીઓડ। अच्छा अच्छा। તો નરસિંહભાઈ શું કામ કરો છો આજકાલ? છૂટક મજૂરી। એમ તમને પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો જે લાભ મળ્યો છે એનાથી સંતોષ છે? શું શું મળે છે અને શું છે જરા વર્ણન કરશો? હા સાહેબ, એનાથી સંપૂર્ણ સંતોષ છે અમને। અમને વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં મળે છે અને 1.5 કિલો ચોખા મળે છે। ઘરમાં પૂરતું થઈ રહે છે બધું કે વધારે પડે છે? ના સાહેબ, થઈ રહે કમ્પ્લીટ। તો હવે અનાજનો ખર્ચો બચ્યો તે પૈસા શું કરો છો? સાહેબ અનાજનો જે ખર્ચો બચે એમાં બીજો જે ખર્ચો થતો હોય ને। પૈસા તો બચ્યા ને, પહેલા તો અનાજ ખરીદતા હતા સાહેબ પૈસા બચ્યા, પરંતુ કંઈક દવાનો હોય, કંઈક બીજો આર્થિક હોય, બીજો આગુ પાછું કંઈ લાવવાનું હોય। તમને સરકારની બીજી કોઈ યોજનાઓના પણ લાભ મળ્યા છે કે? હા સાહેબ। શું મળ્યું છે? ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં મને એક વખત સુથારી કામના સાધન મળેલા। એટલે સુથારી કામ કરો છો? ના સાહેબ, હા, હું દૂધનો ધંધો કરું છું અને છૂટક મજૂરી કરું, જેવી કે લાઇટ વાળા પાસે હેલ્પરનું કામ કરું છું હું, અને બીજી કોઈ જો મજૂરી મળી રહે તો કરી લેવું છું। તમારા પરિવારમાં કોણ છે? દીકરા દીકરી? એક દીકરો છે અને દીકરી છે। એ લોકો ભણે છે? ભણાવો છો કે નથી ભણાવતા? હા સાહેબ, ભણાવું છું ને। हाँ, नरसिंह भाई, सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि सामान्य मानवी को हर स्तर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए। सिर्फ योजनाएं ही बनाई जाए इतना ही नहीं, बल्कि वो लाभार्थी तक पहुंचे भी। मुझे संतोष है कि आपको और आपके परिवार की राशन की चिंता दूर हुई है। आप अपने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं और उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दें। अब तो वडनगर में नવું रेलवे स्टेशन પણ બની ગયું છે, જોઈ આયા કે નહીં? જી હા સાહેબ, મુલાકાત લીધી ને। હા, કેવું બન્યું છે? રેલવે સ્ટેશન ગયા, પછી ત્યાંથી ગાડીમાં બેસીને વિસનગર ગયા। ગામવાળા ખુશ છે વડનગર સ્ટેશન જોઈને? અરે સાહેબ, કેટલી ખુશી છે, કઈ ના પૂછો વાત। એમ કરવી મુશ્કેલ છે। ચાલો, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ બધાને। ધન્યવાદ સાહેબ। વડનગર વાસીઓને મારા પ્રણામ। दिव्यांग लाभार्थी वर्षाबेन भूरिया। माननीय प्रधानमंत्री जी अब दाहोद की इस लाभार्थी से संवाद करेंगे और उनसे योजना के बारे में जानेंगे। વર્ષાબેન નમસ્તે। નમસ્તે સાહેબ। વર્ષાબેન, કયા ગામમાં રહો છો? દાહોદમાં કે બીજે ક્યાંય? જાળતમાં રોશે સાહેબ। અને મૂળ ગામ ક્યાં આપણું વર્ષાબેન? મૂળ ગામ ક્યાં? ભુરિયા વર્ષાબેન મનોજભાઈ, ગામ જાલત, નાકા ફળિયામાં રહું છું। अच्छा, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના આ મેળવવામાં કોઈ વાર કઈ તકલીફ તો નથી પડતી કે મળી જાય છે કે શું થાય છે? ના, નથી તકલીફ પડતી, દાણા ઠેકા ઉપરથી મળી જાય છે સાહેબ। દર મહિને જે સમય હોય એ સમય મળે છે કે મોડું પડે છે? હા બે ચાર હા, મળી જાય છે સાહેબ। બે ચાર વખત આટા મારવા પડે, ફેરા ખાવા પડે, એવું નથી થતું ને? ના ના, નથી થતું એવું। દિવ્યાંગ પરિવારો માટે, દિવ્યાંગો કે માટે ગુજરાત સરકાર પણ અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચલાવી રહી છે। આ ગુજરાત સરકારની જે યોજનાઓ છે એનો લાભ તમને કઈ મળે છે વર્ષાબેન? મળે છે સાહેબ, વિધવા સહાય। વિધવા સહાય મળે છે અને દિવ્યાંગ તરીકેનું કઈ મળે છે બીજો લાભ આપને? બીજો નથી મળતો। અચ્છા, તો હું જ્યાં અધિકારીઓને કહીશ કે દિવ્યાંગજનો માટેનો કોઈ લાભ હોય અને તમારા પરિવારમાં દિવ્યાંગજનને એનો લાભ મળે
એના માટે જરૂર સરકારી અધિકારીઓ તમારો સંપર્ક કરે એ હું જરૂર એમને કહીશ આજે. હારું. વર્ષાબેન, તમે તમારા જીવનમાં આટલી બધી મુશ્કેલીઓ આવી પણ તમે જરાય હતાશ ના થયા, નિરાશ ના થયા અને બાળકોને પણ મોટા કરી રહ્યા છો અને ખેત મજદૂરીનું પણ કામમાં પણ જુટ્યા છો. સંતાનોને ભણાવો છો ખરા? હારું સાહેબ, એક જ છોકરી છે, ભણાઈ રહી છે. एम जो कोरोना काल में भी सरकार ने आप जैसे साथियों को ध्यान में रखते हुए कृषि से जुड़े काम को हर बंदिश से दूर रखा. खेत मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की पेंशन भी आज लागू है और लाखों साथी इससे जुड़ चुके हैं. तो वर्षाबेन, आ બધા ચીજોનો લાભ લેજો. મારા તરફથી તમને ખૂબ શુભકામનાઓ અને દાહોદવાસીઓને પણ મારા નમસ્કાર. હવે તો વર્ષો થઈ ગયા, ઘણા વર્ષો પહેલા આવતો દાહોદ, હવે દાહોદ બહુ આવવાનું થતું નથી. ખૂબ ખૂબ આભારથી સાહેબ. આવજો. राजकोट शहर से जुड़ी है गंगा स्वरूपा लाभार्थी नैनाबेन जोशी. माननीय प्रधानमंत्री जी नैनाबेन से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे. નૈનાબેન નમસ્તે. નમસ્તે સર. નૈનાબેન, શું કરો છો આપ? હું સરકારી સ્કૂલમાં સફાઈ કામમાં છું સર. અચ્છા અચ્છા. આ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના, એનાથી શું લાભ થઈ રહ્યો છે પરિવારમાં? ઘણો લાભ મળી ગયેલો છે. હા, હા હા. અમારે છોકરા ખાઈને પેટ ભરીને ખાય છે, પેટ ઠરે છે અમારું સાહેબ. બહુ સરસ તમે કર્યું છે, બધી રીતે સારું અમને છે સાહેબ. નૈનાબેન, આ યોજના શરૂ થઈ એનો લાભ લેવા માટે તમને કઈ આમ વખો પડ્યા, તકલીફ પડી? સીધે સીધું મળ્યું તો વચ્ચે કઈ આમ કોઈ વચેટિયા બધું કઈ આડું તેડું કર્યું એવું તો કઈ થયું નથી ને? નહીં, કાંઈ નથી. આ કોરોના હતો ત્યાં સુધી અમને બહુ તકલીફ પડી હતી. અમને મારા ઘરના ગુજરી ગયા તો તમે વિચારતા હતા કે અમે અનાજ ક્યાંથી કાઢીએ, તો તમે અમને આટલા પેટમાં પૂરું પાડ્યું તો અમે એટલે રાજી થઈ ગયા. છોકરા પેટ ઠરીને ખાય છે સાહેબ, તો અમને કોઈ જાતની વાંધો આવે એમ નથી. તમે અમને આટલો ટેકો દીધો અને અમને એટલો ટેકો દેતા રહેજો સાહેબ. તો તમને સંતોષ છે? મને બહુ જ સંતોષ છે. અમારા ઘરના બધા રાજી થઈ ગયા છે કે બહુ સરસ મજા આવે છે જમવાની, સરસ સ્વાદવાળું જમવાનું આવે છે એમ. બસ તમારા જેવી બધી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ મળે તો અમે વધારે સારું કામ કરીએ, સારું પણ કરીએ અને સાચું પણ કરીએ. સાચું છે. અમારો આ જ પ્રયત્ન છે કે તમને બધાને આ યોજનાઓનો કોઈ પણ ભેદભાવ વગર લાભ મળે અને કોઈ ઓળખાણની જરૂર નહીં. નિયમથી, કાયદાથી બધાને બધો લાભ મળે, એ જ આપણો સરકારનો પ્રયાસ છે. અને મારો તો અધિકારીઓને પણ આગ્રહ હોય છે કે ભાઈ સામે ચાલીને ગરીબને તકલીફ હોય તો સામે ચાલીને જઈને એમની મુશ્કેલી દૂર કરવી જોઈએ. અને ગુજરાતમાં તો આપણા અધિકારીઓને પણ હવે આની આદત પડી ગઈ છે એટલે સામે ચાલીને ચિંતા કરતા હોય છે. ચાલો નૈનાબેન, તબિયત સાચવજો અને બાળકોને ભણાવજો અને ખૂબ બધા રાજકોટ વાસીઓનો ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું, કારણ કે હું પહેલી વાર એમએલએ બન્યો તો તમે બધા રાજકોટના લોકોએ મને એમએલએ બનાવ્યો હતો. નમસ્તે. એટલે રાજકોટનું તો ઋણ કાયમ માટે મારા માથે છે. ચાલો, ધન્યવાદ બધાને. आदिवासी क्षेत्र तापी के गढ़ से जुड़े हैं चौधरी जितेंद्र भाई नरसिंह भाई. माननीय प्रधानमंत्री जी जितेंद्र भाई से संवाद करेंगे. जितेंद्र भाई नमस्ते. નમસ્તે સાહેબ. जितेंद्र भाई, હા જી કેમ નમસ્તે. છો? બસ મજામાં સાહેબ. ક્યાંથી બોલો છો અત્યારે, ક્યાં છો? હું ગામ ગળદ, ડોલવણ તાલુકો અને જિલ્લો તાપીથી બોલું સાહેબ. એટલે તાપી જિલ્લામાં કાર્યક્રમ ચાલે છે આજે? હા, તાપી જિલ્લામાં. હા, તમારા તાપી જિલ્લામાં તો કલેક્ટર કચેરી બી બહુ શાનદાર છે એકદમ. જબરજસ્ત સાહેબ. હા, જીતેન્દ્રજી, હા બોલો સાહેબ. મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમને આ યોજનાની ખબર જ નહોતી.
અને તમે કઈ એનો લાભ જ નહોતા લેતા, એવું કેમ થયું? ના ના સાહેબ, લાભ મળે છે ને. હવે મળે છે લાભ? હા મળે. પહેલેથી મળે છે કે વચ્ચે ભાઈ પહેલે બહુ મોડેથી ખબર પડી? શું થયું હતું? ના મળે છે સાહેબ. હા. હમ. અને તમે શું ખેતી કરો છો? આ ખેતી અને પશુપાલનનો ધંધો કરું. એમ? પશુપાલનમાં કેટલા પશુ છે આપણે ત્યાં? મારે 3 ભેંસો છે અને 1 ગાય છે. અચ્છા. અને દૂધ ક્યાં ભરો છો? દૂધ ડેરીમાં. ડેરીમાં? ગામમાં દૂધ ડેરી છે. હા. અત્યારે શું ભાવ મળે છે દૂધનો ગુજરાતમાં? એ અમારા ભેંસના દૂધનો ભાવ 50 થી ઉપરનો છે સાહેબ. હા. અને ગાયનો? ગાયનો 30 થી ઉપર મળે છે. અચ્છા. ફેટ પ્રમાણે, એટલે એ તો દર મહિને અલગ અલગ હોય સાહેબ. અને ખેતીમાં શું કરો છો? હું ડાંગર વાવ્યું છે હમણાં, હા. અને તુવેર બનાવું, અને એના પછી ડાંગર કાઢીને છે ને આપણે ભીંડા પણ બનાવું છું સાહેબ. એમ? ઓહો. હા. જીતેન્દ્રજી, આપણે પીએમ કિસાન યોજનાના જે 2,000 રૂપિયા આપણે મોકલીએ છીએ એ રકમ મળી જાય છે? એ સાહેબ અમારા ટાઈમસર અને અમારા ખાતામાં સીધા જમા થઈ જાય છે. એટલા જ નહીં, પણ અમારું નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન પણ અમને મળે છે સાહેબ. અરે વાહ. અને હા. માતાઓને વિધવા પેન્શન પણ અમારા ટાઈમસર પોતપોતાના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે સાહેબ. પણ જીતેન્દ્રભાઈ, આ તમારા ગામના બાકી ખેડૂતોને પણ 2,000 રૂપિયા એમના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે બરાબર? આ બધાના થઈ જાય સાહેબ. હા. વચમાં કોઈ વચ્ચે દખલ નથી કરતું ને? કોઈ કટકી કંપની નથી ના, આવતી વચમાં? ના, કોઈ કમ્પ્લેન નહીં. બિલકુલ ઈમાનદારીથી પહોંચી જાય છે. આ પહોંચી જાય. કારણ કે આપણા દેશના એક પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા 15 પૈસા થઈ જાય છે. હા, એવું આપણે તો કહેતા હતા. રૂપિયો દિલ્હીથી નીકળે તો રૂપિયો આખો પડે છે કે? હા, મળી જાય છે. 2,000 રૂપિયા મોકલો, 2,000 રૂપિયા પૂરા મળે છે, કઈ ઘસારો પડે છે? હા, પૂરેપૂરા. તમારા જેવા બાહોશ, નીડર, હોશિયાર અને દેશનું આવું જબરજસ્ત નેતૃત્વ સંભાળવા વાળા કોઈ નેતા હોય તો શું બીજા એમાં દખલગીરી કરી શકે સાહેબ? તમારા બધા આદિવાસી ભાઈઓના આશીર્વાદ છે. હા, અમારા બધા આદિવાસી ભાઈઓ તમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે છે, અને બીજી વખત પણ આપની સરકાર બને એવા અમારા ગરીબ આદિવાસીઓ તરફથી આપને આશીર્વાદ આપે છે. આદિવાસી સમાજના બધા ભાઈઓને, ઉમરગામથી અંબાજી સુધી બધાને મારા प्रणाम। देखिए जितेंद्र भाई, किसानों की आय बढ़ाना आज सरकार की प्राथमिकता है। विशेष रूप से छोटे किसानों को आज हर संभव सहायता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर एफपीओस के माध्यम से छोटे किसानों को संगठित करने का काम, ये बहुत काम आ रहा है। यही नहीं, आज अगर गुजरात के छोटे किसानों के फल सब्जी देश के दूसरे बाजारों तक सुरक्षित और तेजी से पहुंच पा रही है, तो इसमें किसान रेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। અને જીતેન્દ્રભાઈ, તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ મારી। ધન્યવાદ। ગાંધીનગરના જાસપુરમાં ઉપસ્થિત છે દિવ્યાંગ લાભાર્થી દિલીપભાઈ સુવડિયા। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દિલીપભાઈ સાથે સંવાદ કરશે। દિલીપભાઈ નમસ્તે। નમસ્કાર સાહેબ। દિલીપભાઈ, કહો જરા, તમારા વિશે સાંભળવું છે મારે। મારું ગામ સુવાડિયા દિલીપ કુમાર અમૃતલાલ, જાસપુર ગામ ગાંધીનગરનું। શું કરો છો? સલૂનનું કામ, એમ? બાણંદ કામ। ત્યાં ગામમાં જ છે સલૂન કે ગાંધીનગર બનાવ્યું છે? ના, ગામમાં જ થાય। ગામમાં જ છે। ગામડામાં। તો તમે દિવ્યાંગ છો? અપંગ છું 60%। હા, 60%। શું એટલે બચપણથી છે કે પછી કઈ એક્સિડન્ટ થયો હતો? પોલિયો થયો હતો લખવાથી। કોરોના વખતે આપણા ગામમાં તમે બધા તો સલામત રહ્યા છો કે નહીં? સરસ। હે? હા, સલામત રહ્યા। હા દિલીપભાઈ, તમારું તો કામ એવું છે કે કોઈને પણ જરા આમ ઠાઠવાટ કરવો તમારે ત્યાં જ આવવું પડે। બરોબર। પરંતુ ગયા કોરોનાના કારણે લોકો આવવાની હિંમત જ નહીં કરતા હોય।
કોરોના કાળમાંથી સાહેબ 2 વર્ષથી તો તકલીફ જ જાય. હા, પણ હવે બરાબર ચાલે છે? અનાજ મળ્યું એના કારણે મદદ મળી છે? અનાજ બરાબર પૂરું મળે સાહેબ, કમ્પ્લીટ. અને તમારું તો કામ એવું છે કે તમે દૂરથી કરી જ ના શકો, તમારે એની પાસે જવું જ પડે. એનાથી લોકો ભયભીત હાલથી ચાલુ જ છે, લોકો થોડા ગભરાય છે. પણ તમે બરાબર માસ્ક વગેરે પહેરીને બધું કરો છો ને સેવા? માસ્ક ને બધું સેનેટાઈઝ બધું કમ્પ્લીટ છે. વાહ વાહ વાહ. હા, જે અન્ન યોજના જે છે એ મેળવવામાં તમને કોઈ તકલીફ પડી કે સરળતાથી બધું મળી રહ્યું છે? ના સરસ સાહેબ, બધું કમ્પ્લીટ જ મળી જાય. કોઈ તકલીફ નથી પડતી? ના, કોઈ જ નહીં. હો, બાળકો શું કરે છે? બાળકો એક અમારું સલૂન નું કામ કરે ને એક હજુ ભણે છે. ભણે છે? તો મોટા છોકરાને ભણાવ્યો નહીં તમે? ભણે છે સાહેબ, હું વિકલાંગ છું એટલે બીજું મારે જોવે ને થોડું સહકાર. હા, તમને મદદમાં જોઈએ. કેમ? हाँ। चलो दिलीप भाई, 100 वर्ष के इस सबसे बड़ी विपत्ति ने सभी को प्रभावित किया है। 100 साल में कभी ऐसी आपदा नहीं आई। हमारे कामकाज के तौर तरीकों को भी बहुत प्रभावित किया है। ये जो वायरस है उसने नए नए तौर तरीके अपनाए, बहुरूपीय जैसा है। आप एक करो तो वो दूसरा रंग करता है और सबको अनेक मुसीबतों में डाला हुआ है। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना हर काम, हर सुरक्षा के हर कायदे का ध्यान में रखते हुए, हर चीज का पालन करते हुए करना चाहिए, ताकि हम भी बच पाएं और भी बच पाएं। मेरी आप सबको, गांधीनगर वासियों को, दिलीप भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार। आज देश के अंत्योदय, गरीब, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, महिला शक्ति, हर तबके का सशक्तिकरण हुआ है। जन जन को आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान करती विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना हो या गरीबों के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आज देश का हर एक व्यक्ति गरीब सामान्य जन लाभान्वित है। आत्मनिर्भर भारत का यह ध्येय साकार हुआ है देश के जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दृष्टिवंत नेतृत्व में। आइए जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अनुरोध करते हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, PM गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। ये योजना आज से प्रारंभ नहीं हो रही है, योजना तो पिछले 1 साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है
कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है। लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले
श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। भाइयों और बहनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तक ही सीमित होती थी। वहां भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन जाएं, सड़कें बन जाएं, मेट्रो बन जाए, यानी गांवों कस्बों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामान्य मानवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया। बीते वर्षों में देश ने इस सोच को बदला है। आज देश दोनों दिशाओं में काम करना, दो पटरी पर चलना चाहता है। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी, गर्मी, बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है ना, तो आत्मसम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उस संकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेत जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात मेहनत करता है। जब 10 करोड़ परिवारों को शौच के लिए घर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टॉयलेट होता है, शौचालय उन्हीं के घर में होता है। गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है। लेकिन जब गरीब को शौचालय मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आप को देखता है, एक नया विश्वास पैदा होता है। इसी तरह जब देश का गरीब जनधन खाते के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता है, मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है, तो उसे ताकत मिलती है, उसे नए अवसर मिलते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, सामर्थ्य मूलम सुखमेव लोके, अर्थात हमारे सामर्थ्य का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है। जैसे हम सुख के पीछे भागकर सुख हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं, कुछ हासिल करना होता है। वैसे ही सशक्तिकरण भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और गरिमा बढ़ने से होता है। जब करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज मिलता है, तो स्वास्थ्य से उनका सशक्तिकरण होता है। जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाती है, तो इन वर्गों का शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। जब सड़कें शहरों से गांवों को भी जोड़ती हैं,
जब गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलता है तो ये सुविधाएं उनका सशक्तिकरण करती हैं। जब एक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं तो अपनी उन्नति के बारे में, देश की प्रगति के बारे में सोचता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है। भारत में ऐसी अनेकों योजनाएं गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, जब सामान्य मानवी के सपनों को अवसर मिलते हैं, व्यवस्थाएं जब घर तक खुद पहुंचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है ये गुजरात बखूबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माताओं बहनों को पानी जैसी जरूरत के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माताएं बहनें साक्षी हैं। ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजकोट में तो पानी लेना है तो घर के बाहर गड्ढा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से, सौनी योजना से, नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है जहां कोई सोचता भी नहीं था। और हमारे यहां तो कहा जाता था कि मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है। आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात 100% नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी के नल की सुविधा से जुड़े हुए थे, जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहत देश भर में सिर्फ 2 साल के भीतर 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसीलिए मेरी माताएं बहनें मुझे भरपूर आशीर्वाद देती रहती हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार के लाभ भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सरोवर बांध से विकास की नई धारा ही नहीं बह रही, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकर्षण में से एक आज गुजरात में है। कच्छ में स्थापित हो रहा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पूरे विश्व के रिन्यूएबल एनर्जी मैप से स्थापित करने वाला है। गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के आधुनिक और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रशंसनीय काम हो रहा है। गुजरात में तैयार हुए बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, गुजरात सहित पूरे देश में ऐसे अनेक काम हैं जिनके कारण आज हर देशवासी का, हर क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये आत्मविश्वास ही है जो हर चुनौती से पार पाने का, हर सपने को पाने का
एक बहुत बड़ा सूत्र है। अभी ताजा उदाहरण है ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर गेम में दिख रहा है। ओलंपिक्स में उतरे हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ियों को, उनकी टीमों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। ये आत्मविश्वास आज देश के कोने कोने में, हर छोटे छोटे बड़े बड़े गांव, कस्बे, गरीब मध्यम वर्ग के युवा, भारत के हर कोने में ये विश्वास आ रहा है। साथियों, इसी आत्मविश्वास को हमें कोरोना से लड़ाई में और अपने टीकाकरण अभियान में भी जारी रखना है। वैश्विक महामारी के इस माहौल में हमें अपनी सतर्कता लगातार बनाए रखनी है। देश आज 50 करोड़ टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात भी 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस को उसके पड़ाव के पास पहुंच रहा है। हमें टीका भी लगवाना है, मास्क भी पहनना है और जितना संभव हो उतना भीड़ का हिस्सा बनने से बचना है। हम दुनिया में देख रहे हैं, जहां मास्क हटाए भी गए थे, वहां फिर से मास्क लगाने का आग्रह किया जाने लगा है। सावधानी और सुरक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं एक और संकल्प देशवासियों को दिलाना चाहता हूं। ये संकल्प है राष्ट्र निर्माण की नई प्रेरणा जगाने का। आजादी के 75 वर्ष पर, आजादी के अमृत महोत्सव में ये पवित्र संकल्प लेना है। इन संकल्पों में, इस अभियान में गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, दलित, वंचित सबकी बराबर हिस्सेदारी है। गुजरात आने वाले वर्षों में अपने सभी संकल्प सिद्ध करे, विश्व में अपनी गौरवमयी पहचान को और मजबूत करे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।